1948 में اسرائیلی ریاست کے قیام سے اب تک کئی جنگیں ہو چکی ہیں۔ فلسطینی تنظیموں حماس اور اسلامک جہاد کا تازہ حملہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ان جھڑپوں میں اب تک ہزاروں فلسطینی شہید اور لاکھوں زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی 20ویں صدی کی جاری رہنے والی طویل ترین تصادم میں شمار ہوتی ہے، جس کا آغاز 1948 میں اسرائیلی ریاست کے قیام سے ہوا۔ اب تک عرب ممالک، فلسطینی حریت پسندوں اور اسرائیل کے درمیان کئی جنگیں اور خونی جھڑپیں ہو چکی۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا قیام ہوا تو اگلے ہی دن اردن، مصر، شام اور عراق نے حملہ کر دیا۔ یہ پہلی عرب اسرائیلی جنگ تھی جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کے منصوبے کے مطابق جہاں عرب ریاست بننا تھی وہ علاقہ مختلف ممالک کے قبضے میں آ گیا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 7.5 لاکھ فلسطینی بے دخل کر دیے گئے۔ 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے عرب اتحاد کو شکست دے کر مصر سے غزہ کی پٹی، شام سے گولان اور اردن سے مشرقی یروشلم سمیت مغربی کنارے کا علاقہ چھین لیا اور سینائی مصر پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ 1973 میں مصر اور شام نے اسرائیل پر اپنے علاقے چھڑانے کے لیے حملہ کیا جسے یوم کپور جنگ کہا جاتا ہے۔ 6 سال بعد اسرائیل اور مصر نے امن کا معاہدہ کر لیا اور سینائی مصر کو واپس لوٹا دیا گیا۔ اردن نے بھی کچھ عرصے بعد اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے مصر کی تکلیف۔ عربوں اور یہودیوں کے درمیان 3 بڑی اور کئی چھوٹی جنگیں ہو چکی ہیں۔ فلسطین پر اسرائیل کے ناجائز قبضے، فلسطینیوں کی اپنے گھروں سے بے دخلی، ظالمانہ محاصروں، مسجد اقصی کی بے دریغ بے توقیری، فلسطینی عورتوں، بچوں اور بوڑھوں پر درندہ صفت اسرائیلی فوجیوں کے جبر و ستم کے خلاف فلسطینی جان بازوں کی مزاحمت کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ ان جھڑپوں میں اب تک ہزاروں فلسطینی شہید اور لاکھوں زخمی ہو چکے ہیں۔ بلیٹن کا آغاز اہم خبر کے ساتھ۔ اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری کے بعد زمینی حملے کی تیاری۔ اسرائیل کی شمالی غزہ کے لوگوں کو 24 گھنٹے میں علاقہ چھوڑنے کا الٹیمیٹم۔ صہیونی افواج کی جانب سے غزہ کا مکمل محاصرہ۔ بمباری سے عمارتیں کھنڈر بن گئیں، بجلی، پانی اور ایندھن کی سپلائی بند ہے۔ اسرائیل کی بمباری شہید فلسطینیوں کی تعداد 1570 ہو گئی۔ 7200 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ شہید ہونے والوں میں 250 سے زائد خواتین، 400 سے زائد فلسطینی بچے شامل۔ حماس کے حملوں میں ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 1300 تک جا پہنچی ہے اور اسرائیلی بمباری سے 2500 سے زائد مکانات تباہ ہوئے۔ 3,38,000 فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ 2,20,000 فلسطینی اقوام متحدہ کے سکولوں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ غزہ میں اسپتالوں میں زخمیوں کے لیے بستر اور ادویات بھی کم پڑ گئی ہیں۔ اسرائیل نے زمینی حملہ کیا تو نیست و نابود کر دیں گے، حماس نے خبردار کر دیا۔ القدس کے تحفظ کے لیے مزید کارروائیوں کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ترجمان حماس کا ایسا کہنا ہے۔ آپریشن الاقصی میں توقع سے زیادہ کامیابی ملی۔ یرغمال بنائے گئے بہت سے اسرائیلی فوجی امریکی اور فرانسیسی شہری ہیں۔ حماس رہنما کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حزب اللہ کو سمارٹ اور اسرائیلی وزیر دفاع کو احمق قرار دیا ہے۔ حماس کے حملوں سے اسرائیلی بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ اسرائیلی وزیر اطلاعات گیلیڈ ڈسٹل مستعفی ہو چکی ہیں۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ میں اپنے بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جو اسرائیل میں ہوا وہ پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ حماس کے حملوں کے پیچھے ممکنہ طور پر ایران ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اپنے رد عمل میں کہا کہ سابق امریکی صدر ایران کی حمایت یافتہ تنظیم کی کیسے حمایت کر سکتے ہیں۔ جنگی صورتحال کے دوران اسرائیلی وزیر اطلاعات گیلیڈ ڈسٹل نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ گیلیڈ نے حزب اللہ کو سمارٹ قرار دینے پر سابق امریکی صدر ٹرمپ پر بھی تنقید کی۔ 1948 میں اسرائیلی ریاست کے قیام سے اب تک کئی جنگیں ہو چکی ہیں۔ فلسطینی تنظیموں حماس اور اسلامک جہاد کا تازہ حملہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ان جھڑپوں میں اب تک ہزاروں فلسطینی شہید اور لاکھوں زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی 20ویں صدی کی جاری رہنے والی طویل ترین تصادم میں شمار ہوتی ہے، جس کا آغاز 1948 میں اسرائیلی ریاست کے قیام سے ہوا۔ اب تک عرب ممالک، فلسطینی حریت پسندوں اور اسرائیل کے درمیان کئی جنگیں اور خونی جھڑپیں ہو چکی۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا قیام ہوا تو اگلے ہی دن اردن، مصر، شام اور عراق نے حملہ کر دیا۔ یہ پہلی عرب اسرائیلی جنگ تھی جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کے منصوبے کے مطابق جہاں عرب ریاست بننا تھی وہ علاقہ
मुख्तलिफ ममालिक के कब्जे में आ गया। इस जंग के नतीजे में 7.5 लाख फलस्तीनी बेदखल कर दिए गए। 1967 की जंग में इसराइल ने अरब इत्तेहाद को शिकस्त देकर मिस्र से गजा की पट्टी, शाम से गोलान और उर्दन से मशरकी यरूशलेम समेत मगरबी किनारे का इलाका छीन लिया और सिनाई मिस्र पर भी कब्जा कर लिया गया। 1973 में मिस्र और शाम ने इसराइल पर अपने इलाके छुड़ाने के लिए हमला किया, जिसे योम कपूर जंग कहा जाता है। 6 साल बाद इसराइल और मिस्र ने अमन का मुआहिदा कर लिया और सिनाई मिस्र को वापस लौटा दिया गया। उर्दन ने भी कुछ अरसे बाद इसराइल को तस्लीम करते हुए मिस्र की तकलीफ। अरबों और यहूदियों के दरमियान 3 बड़ी और कई छोटी जंगें हो चुकी हैं। फलस्तीन पर इसराइल के नाजायज कब्जे, फलस्तीनियों की अपने घरों से बेदखली, जालिमाना मुहासरों, मस्जिद अक्सा की बेदरेक बेतौकीरी, फलस्तीनी औरतों, बच्चों और बूढ़ों पर दरिंदा सिफ्त इसराइली फौजियों के जबरो सितम के खिलाफ फलस्तीनी जानबाजों की मुजाहमत का सिलसिला आज भी जारी है। इन झड़पों में अब तक हजारों फलस्तीनी शहीद और लाखों जख्मी हो चुके हैं। फलस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग बंदी के लिए प्रेस क्लब के बाहर नन्हे बच्चों ने एक रैली निकाली, जिसका मकसद दुनिया को अमन का पैगाम देना है। मजीद बताएंगे इस्लामाबाद से हरीम जिदोन। जी बिल्कुल, इस वक्त प्रेस क्लब के बाहर बच्चों का एक एहतजाज जारी है। इस एहतजाज का मकसद ये है कि फ़लस्तीन पे होने वाले जो जुल्म और बर्बरियत का मुज़ाहरा किया जा रहा है, इसराइल की जानिब से जो जंग है उसको ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से एक अमन का पैगाम दिया जा रहा है और यहाँ पे वॉक भी की गई है बच्चों की जानिब से। हमारे साथ बड़े प्यारे से बच्चे मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं, उनसे बात करते हैं कि इस वॉक का क्या मकसद है, आप बताइएगा। जी बिल्कुल, हम आज हमारा इकट्ठा होना इस बात को साबित करता है कि हम अमन पसंद लोग हैं। हम चाहते हैं कि इस जंग को बंद किया जाए, क्योंकि खून बहाना कोई दलेरी नहीं है। इस जंग को जितनी जल्दी हो सके बंद करें, क्योंकि न जाने कितने घर बेघर हो गए हैं, कितनी जानें जा चुकी हैं। हम उनके लिए अल्लाह से सब्र की दुआ मांगते हैं कि बस ये वॉर ख़त्म की जाए। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि इस वॉक का, इस एहतजाज का मकसद ये है कि दोनों मुल्कों को ये पैगाम दिया जाए कि अमन पसंद जो है वो मुल्क ही तरक्की करते हैं और बैठ के टेबल टॉक करनी चाहिए और ये जो खून बहाना और जंग का सिलसिला जो है इसको ख़त्म होना चाहिए और इसको बंद होना चाहिए। और इनकी तरफ से ये पैगाम दिया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ अमन चाहता है दोनों ममालिक में। जी वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। IT पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी बाहर से फाइनेंस की जाती है। सियालकोट में मस्जिद में फायरिंग करके कुछ अफराद को शहीद किया गया। इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिलकर सबूत इकट्ठे किए हैं। क्राइम सीन में कंफर्म हुआ है कि इसमें बैरूनी हाथ मुलव्वस है। IG पंजाब लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। There was an attack in Pakistan. It was an attack of terrorism. It was sponsored from outside Pakistan. सियालकोट के अंदर एक मस्जिद के अंदर सुबह के वक्त फायरिंग करके कुछ अफराद को शहीद कर दिया गया। इसके इमीडिएट जवाब में हमारे DPO सियालकोट और उनकी टीम ने रिस्पॉन्ड किया, वहाँ पहुँचे और वहाँ से हमने एविडेंस हासिल की। पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने इकट्ठे होकर पाकिस्तान के अंदर होने वाली इस दहशतगर्दी को 24 घंटे के अंदर न सिर्फ ट्रेस किया, हमने इसको फौरी तौर पे रिजॉल्व कर दिया। पकड़ लिए बंदे अदालतों में पेश कर रहे हैं, जिसको ये इस्तेमाल करना चाहते थे दुनिया में, और अब इंशाअल्लाह ताला इनके खिलाफ इस्तेमाल होने जा रही हैं। मरियम नवाज आज हल्का N134 के यूसीस चेयरमैनों, काउंसलर्स और कारकुनों से मुलाकात करेंगी। मरियम नवाज पार्टी रहनुमाओं से 21 अक्टूबर की तैयारियों के हवाले से मुशावरत करेंगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा से। जी हसन रजा, बताइएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से भरपूर तैयारियों के जो है वो मामला का सिलसिला जारी है। जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ जो है जलसे कर रहे हैं, दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ भी कौमी असम्बली के मुख्तलिफ हल्कों के यूनियन कौंसलों के चेयरमैन, कौंसलर और कारकुनान से मुलाकात रोजाना की बुनियाद पर कर रही हैं और दौरे भी कर रही हैं। और आज कौमी असम्बली के हल्के N134 की यूनियन कौंसलों के चेयरमैन, कौंसलर और कारकुनों से मुलाकात करेंगी। मरियम नवाज शरीफ यूनियन कौंसलों के नुमाइंदे, कारकुनों और पार्टी रहनुमाओं से 21 अक्टूबर की तैयारियों पर मुशावरत करेंगी और इंतजाम का जायजा लेंगी और मजीद हदायत जारी करेंगी कि इस्तकबाल के इंतजाम में जो जिम्मेदारियां तफवीज की गई हैं उसके हवाले से भी जायजा लेंगे। और साबिक रुकन कौमी असम्बली राना मुबशर इकबाल, साबिक अरकान सूबाई असम्बली मलक असद खोकर, अख्तर बादशाह और मियां इमरान जवेद भी मुलाकात में शरीक होंगे। जी हसन रजा, बहुत शुक्रिया आपका। कायद नून लीग नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियां। नून लीग आज वंडाला दियाल में शाह फरोज वाला में जलसा करेगी। शहबाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे, जबकि तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं और नून लीग आज वंडाला दियाल शाह फरोज वाला में जलसा करेगी।
जबकि शहबाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। स्टॉक मार्केट में 49,000 पॉइंट्स की सतह अबूर। स्टॉक मार्केट में 354 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और 100 इंडेक्स 49,125 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। शहरियार जंजुआ हमारे साथ मौजूद हैं। शहरियार, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, आज तकरीबन 6.25 साल के बाद 100 इंडेक्स 49,000 की सतह उबूर कर गया है। पिछले 10 कारोबारी सेशन में, यानी कि 2 हफ्ते में 100 इंडेक्स में तकरीबन 2200 पॉइंट्स तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसके मल्टीपल रीजंस हैं। नंबर 1 रीज़न तो इसका यह है कि रुपए की कदर अगेंस्ट डॉलर मुसलसल बेहतर हो रही है। पिछले 1.25 महीने में रुपया तकरीबन 10% तक रिकवर कर चुका है, जिसकी वजह से उम्मीद की जा रही है जो ऑयल प्राइसेस भी इंटरनेशनल मार्केट में हालिया दिनों में कम हुई हैं, उसके असरात 2-3 दिन में नजर आने शुरू हो जाएंगे। और उम्मीद की जा रही है कि हुकूमत पेट्रोलियम प्राइसेस में वाज़े कोई कमी करेगी। इसके साथ साथ जो तमाम एक स्मगलिंग के खिलाफ हुकूमत ने जो एक पूरी कैंपेन शुरू की हुई है, जो मुख्तलिफ छापे मारे जा रहे हैं, रेड्स किए जा रहे हैं, उसके भी बहुत मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो इस तमाम हिकमत अमली से बहुत मुतमईन है। उनको ये उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में अगर स्मगलिंग मुकम्मल तौर पर रुक जाती है तो जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा, उनकी प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेंगे और उनके जो प्रॉफिट्स हैं उसमें भी इजाफा होगा। साथ ही में इस जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो ये भी उम्मीद कर रहा है कि बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस की समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। परवेज इलाही को एडीसी जज अब्बुल हसना जुल्करनैन की रुखसत के बायस ड्यूटी जज के सामने पेश किया गया। अवैस उवैसी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, आज परवेज इलाही को शाहरुख अर्जुमन जो कि ड्यूटी जज थे उनकी अदालत में पेश किया गया, जिसके ऊपर जो है जज ने जो है पूछा कि क्या आज परवेज इलाही का चालान पेश करके, तो सवाल तफ्तीशी अफसर ने यह बताया कि परवेज इलाही जो है तक चालान आ गया, नोटिस भी हो गया। तो शरीफ इस पर जो है जज ने जो है वो 24 तारीख को जो है दोबारा परवेज इलाही की जो है वो डेट दी है। तमाम परवेज इलाही कुर्सी से उठकर रोस्टर पर आ गए। इस पर उन्होंने कहा कि 24 तारीख ना दे, जिस पर जो है अदालती अमले ने ये कहा कि जो है 24 तारीख ही दी जाए। और परवेज इसके साथ परवेज इलाही के वकील सरदार अब्दुल राज़िक ने यह भी कहा कि परवेज इलाही की लाहौर अदालत में पेश है। ताहम जज शाहरुख अर्जुमन ने अदालत ने परवेज इलाही के खिलाफ केस की समाअत 24 अक्टूबर को मुलतवी कर दिया और 24 अक्टूबर को दीगर मुलज़मान जो इस केस में नामजद उनके साथ पेश करने की हिदायत की है। हिदायत की गई हैं। वैसे बहुत शुक्रिया आपका।